हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नज़र आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। और ये सब तब होगा जब हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, और ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर here class 10 CBSE NCERT social science here. That's important question paper for the exam view here. You know that Tripan Study Center take a most important question for the exam view here. Our next question arrive here, that's important. The question here, provide the evidence to support the claim that a print culture had a significant impact on the social lives on women in India. You know that is important. Provide the evidence to support the claim the print culture had a significant impact on the social lives human in India. That is the condition of human in India. That's important here. There is a claim. You know that the rise of print culture in India during the 19th century. That's period time here, 19th century. The rising of print media in print culture in India play a crucial role in awakening their social life of women. The print media is the most important here. Our social life of women is here crucial role. The print press allowed to the women to access information, knowledge, and idea that were previously inaccessible to them. The women as a magazine, newspapers, and books provided a platform for a woman to express their view, idea, and opinions on the various social issues such as education, gender, equality, women as a right, and social reform. That's important as a print media here. There are magazines also. A newspaper and book provide to the platform to women express in open view, idea and opinions and various issues here. The social issue here, education, gender equality, women rights and social reform. That's important. The liberal husbands and fathers began to the educating their women folk at the home and send them to the school. That's important fact here of print media on social life here. Liberal husband and the fathers began to educating their home women's folk at their home and send their school. That's important. In East Bengal, Rashundari Devi. That's important. Rashundari Devi is a young married girl in a very orthodox household and learned to read in the scarcity of their kitchen and write their autobiography Amar Jeevan. You know that this is most important incident here. The West Bengal Rashundari Devi. That's an important girl here. The household learning to read their
scarcity of the kitchen. And right here, autobiography Amar Jeevan is 1876. It was the first full-length autobiography published in the Bengali language. There is a most important woman here, Sundari Devi. There is a young married girl in a very orthodox household here. There is an autographic here, Amar Jeevan, 1876. There is a published here, and fully length of autography is published in a Bengali language. The Bengali woman like Class Basani Devi is write a book highlighting their expression of women about how women were imprisoned at the home, keeping ignorance, forced to do hard domestic labors, and threat to unjusted by their family. That's important here. Bengali women like Class Basani is Devi here. Maharashtra, Tarabai, Sindhe and Pandita Ramabai is right with their passionate is the anger about the miserable live in the upper caste Hindu women, especially the widow. That's an important example for here. A woman is a Tamil novel expressed that a reading means to be a woman who were confined by the social regulation. For various reasons, my world is small. More than half my life is a happiness has come from a book. That is an important point here. The woman is Tamil is a novel expressed that a reading meant to the women who were confined by social regulation. And there is a various reason my world is small. More than half of my life is a happiness has come from a book. Therefore, print culture helped to awaken social consciousness and contribute to the progress of women's right and empowerment in India. That's important here for the exam view. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं CBSE NCERT के सोशल साइंस, और यहाँ पर हम डिस्कस जो कर रहे हैं पेपर, क्वेश्चन पेपर जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है एग्ज़ाम व्यू से, और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखेगा। आपको ये क्वेश्चन देख के भी समझ में आ सकता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने उठाया है। और इसी के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारा क्वेश्चन है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कि सबूत प्रदान करें। एक दावा है, उस दावे को आपने जो है सबूत के साथ जो है इसको सार्थक सिद्ध करना है। और दावा क्या है कि प्रिंट संस्कृति का भारत में महिलाओं के सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यानी देखिए क्वेश्चन साफ है कि भारतीय प्रिंट मीडिया का महिलाओं के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, वो क्वेश्चन घुमा के भी हो सकता है कि इस दावे का आप समर्थन करें और सबूत प्रदान करें कि प्रिंट संस्कृति जो है भारतीय महिलाओं के लिए सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो देखा जाए तो इस बात से हम इग्नोर नहीं कर सकते कि भारतीय संस्कृति प्रिंट ने भारतीय महिलाओं के जीवन को ही बदल के रख दिया। और इसी के अंतर्गत हम समर्थन के लिए सबूत देने के लिए कुछ महान लेखिकाओं की जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, जिन्होंने इन पत्रिकाओं के कारण और प्रिंट के कारण जो है अपना जीवन को एक मार्गदर्शन दे सके, एक रास्ता दे सके। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में प्रिंट संस्कृति के उदय ने महिलाओं को सामाजिक जीवन के जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस ने महिलाओं को उन सूचनाओं और ज्ञान और विचारों पहुंचाने की अनुमति दी जो पहले उनके लिए दुर्लभ होती थी। यानी वो न तो पढ़ सकते थे, न देख सकते थे, न लिख सकते थे, लेकिन प्रिंट मीडिया ने उनको एक शक्ति दे दी, उनको सूचनाओं ज्ञान और विचारों तक पहुंचाने की अनुमति दी, और जो उनके लिए पहले दुर्लभ था। महिला पत्रकारों, समाचार पत्रों और पुस्तकालयों ने महिलाओं को शिक्षा, लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार, सामाजिक सुधार जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दे पर अपने विचार राय व्यक्त करने की मंच प्रदान की, क्योंकि इससे पहले उनको विचार रखने की कोई मंच नहीं थी। लेकिन प्रिंट संस्कृति भारत में आने से महिलाओं
को एक प्लेटफॉर्म मिल गई जहाँ पर वो अपने विचार, अपने सोच, अपनी राय रख सकते थे। वो भी किसके ऊपर? महिलाओं के शोषण के ऊपर, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर, महिलाओं की लैंगिक असमानताओं के ऊपर, महिलाओं के अधिकार के ऊपर, महिलाओं के समाज सुधार के अंतर्गत। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रिंट संस्कृति का ही जो है प्रभाव था, जिनके कारण महिलाएं जो है आगे निकल के सामने आई। देखा जाए तो उदारपतियों और पिताओं ने अपनी महिलाओं को घर पर ही शिक्षित करना शुरू किया और उन्हें स्कूल में भी भेजा। कहते हैं ये प्रिंट मीडिया का ही नतीजा था, जिसके कारण पतियों ने और पिताओं ने अपने बच्चों को जो है शिक्षा देने के लिए अग्रसर हुए। इसी के अंतर्गत देखा जाए तो पूर्वी बंगाल में एक बहुत ही रूढ़वादी घराने की एक युवा विवाहित लड़कियां रसा सुंदरी देवी ने अपनी रसोई की गोपनीयता में पढ़ना सीखा और अपनी आत्मकथा अमर जीवन में, जो कि 1857 में लिखी गई थी, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी इस घटना से आप ये समझ सकते हो कि उस समय औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। कहते हैं राज सुंदरी जो थी देवी ने अपने घर वालों और परिवारों से बच बच के जो है किचनों में पढ़ती थी, लिखती थी और वहीं रसोई भी बनाया करती थी। और जब भी कोई लोग आता अपनी किताबों को जो है किसी चीज़ में छुपा देती, इससे लोगों को पता न चले कि वो पढ़ रही है। देखिए इतनी रूढ़वादी घराना से इस युवती ने अपनी दिलेरी का सामना किया और एक पढ़ी लिखी जो है बनी। और इवन देखा जाए तो उसने अपनी आत्मकथा पर अमर जीवनी में इन सब बातों को जो है लिखा कि आज का समाज किस प्रकार का है और इस समाज का क्या प्रभाव होना चाहिए। तो देखा जाए तो रूढ़वादी का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और देखा जाए तो आज राज सुंदरी देवी द्वारा लिखी आत्मकथा बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली पुण्य आत्मकथा थी। अगर वो उसने किचन में पढ़ाई न किया होता तो शायद बंगाल का पहला जो है पुण्य आत्मकथा न होती। तो देखा जाए तो ये सब कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का ही कमाल था, जिसके कारण महिलाओं को जो है आगे लाने के लिए सक्षम बनाया। और यही एग्जाम्पल नहीं थमा, आगे भी कई ऐसे एग्जाम्पल आए, जैसे कि कैलाश वासिनी देवी, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैलाश वासिनी देवी जैसी बंगाली महिलाओं ने महिलाओं के अनुभवों को उजागर करने वाली किताब भी लिखी। कैसी महिलाओं के घर में कैद किया जाता था, अज्ञानता में रखा जाता था और कठिन घरेलू श्रम कराने के लिए मजबूर किया जाता था और उनके परिवार द्वारा उनके साथ अन्याय भी किया जाता था। तो ये सारी बातों को जो है उन्होंने कैलाश वासिनी देवी ने अपनी बंगाली महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। तो कहते हैं सब कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का ही एक महत्वपूर्ण प्रभाव था, जिनके कारण इन औरतों को जो है एक सख्त माध्यम दिया और अपने आप को जो है पूरी दुनिया के समक्ष अपनी विचार रखने का जो है मौका दिया। इवन देखा जाए तो ये सिलसिला यही नहीं घटा, महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं, विशेषकर विधवाओं के दयनीय जीवन के बारे में भावुक गुस्से के साथ लिखा। यानी देखा जाए तो महाराष्ट्र के ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने महाराष्ट्र की जो विधवा औरतों के जो है जीवन के बारे में उन्होंने बहुत ही भावुकता बातों का उजागर किया, जो पूरी दुनिया अनभिज्ञ थी। लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक और अपने जो है कार्य से पूरे विश्व को बताया कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंट माध्यम का ही एक महत्वपूर्ण जो है संकेत थी। और कहते हैं ये बात यही नहीं थमा, एक तमिल उपन्यास में एक महिला ने बताया कि सामाजिक नियमों से बंधी महिलाओं के लिए पढ़ने का क्या मतलब होता है। विभिन्न कारणों से पूरी दुनिया छोटी है, मेरी जीवन की आधी से ज़्यादा खुशी किताबों से आई है। अब देखिए ये शब्द जो है उस महिला की दर्द को उजागर करता है कि विभिन्न कारणों से मेरी दुनिया छोटी है। उसकी दुनिया जो है छोटी क्योंकि चार दीवारी है, घरों में जो है औरतों को बंद कर दिया जाता है चार दीवारियों में। लेकिन कहती है कि मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबों से ही आई है। यानी देखा जाए तो तमिल उपन्यास में एक महिला ने जो बात लिखी है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी दुनिया छोटी है लेकिन किताबों ने वो खुशी दी है जो दुनिया में किसी ने ना दिया हो। उसने किताबों में ही पूरे विश्व को समझा, पढ़ा और जाना। इन कारणों से देखा जाए तो प्रिंट संस्कृति ने भारतीय
और भारतीय में जो महिलाओं की सामाजिक चेतना जगाने में मदद की और भारत में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की प्रगति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखा जाए यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें तो भारत में प्रिंस संस्कृति ने सामाजिक चेतना जगाने के साथ साथ महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण को भी काफ़ी प्रफुल्लित किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जब तक औरतों को हम शिक्षित नहीं करेंगे हमारा देश कभी शिक्षित नहीं होगा, क्योंकि एक औरतों को शिक्षित करने का मतलब है उसका पूरा परिवार को शिक्षित करना। अगर एक महिला अगर कहती शिक्षित नहीं है तो पूरा परिवार ही अनपढ़ता की उस काल कोठरी में से गुजरता है जहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। तो इसलिए औरतों को शिक्षा देना हर एक माता पिता का प्रथम वचन होना चाहिए। कहते सरकार का जो है प्रथम उद्देश्य होना चाहिए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से रखता है। यहाँ पर क्वेश्चन जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो आपको तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है। और सहायता एकमात्र थोड़ा सा जो है तकलीफ़ करके कर सकते हो कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का मानना है कि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर हो सकता है और इसमें आप माध्यम बन सकती हो। मैंने तो अपना जो कार्य होता है वो करता हूँ बखूबी, लेकिन आपका भी कार्य महत्वपूर्ण है। आप भी अपने कार्य कीजिए, क्योंकि आप कीजिएगा तो मैं भी आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा करूँगा और ये आप देख सकते हो, समझ सकती हो। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और चाहते हो कि इसी प्रकार वीडियो आपको मिलता ही रहे जो इम्पोर्टेंट भी हो और ज़रूरी भी हो और एग्ज़ाम व्यू से भी रहे, तो सोचना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दो फ़ायदे होते हैं, एक तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा और प्लस आपको चैनल से जो है स्किप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि चैनल अगर आपको नहीं मिलेगा तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। ऐसे बहुत से चैनल होते हैं जो आपको अच्छा लगता है लेकिन बाद में आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेने में ही समझदारी रहती है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।